Hello students, welcome to my channel Science World. I hope you are good and taking care of yourself. Students, in our last video we have talked about the useful microorganisms. Today in this video we are going to talk about the harmful microorganisms. Okay, before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, and if you like this video then please like, comment and share it with your friends. Students, in our last two videos we have discussed about 5 types of microorganisms and about the useful microorganisms. Now there are some microorganisms which are harmful in many ways. For example, some of the microorganisms cause diseases in human beings, other animals and in plants. So the microorganisms which cause diseases, they are known as पैथोजेंस. उनको पैथोजेंस कहा जाता है या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं जर्म्स. ओके, सो पैथोजेंस और जर्म्स. So these are the microorganisms that cause different types of diseases. Thus pathogens are disease causing microorganisms. Okay, so pathogens can be not of any particular type. Means they may be bacteria, they may be viruses, they may be protozoa or fungi. So microorganisms that are harmful for us or that cause diseases, they are of different types. So microorganisms cause diseases in human beings such as tuberculosis, tetanus, diphtheria, whooping cough, cholera, typhoid, AIDS, food poisoning, malaria, smallpox, chickenpox, and most recent example, that is coronavirus. Okay, so these all the diseases are caused by some types of microorganisms. They are known as pathogens. Okay, so some of these microorganisms, they spoil food. वो फूड को खराब कर देते हैं. क्लॉथिंग और लेदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेदर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, ऐसी चीज़ों को वो खराब कर देते हैं. सो वी विल सी सम हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स नाउ. Disease causing microorganisms in human beings. Let us see which are they. Students, there are two types of diseases. You can say communicable and non-communicable diseases. So disease causing microorganisms or pathogens हम जिनको बोलते हैं, they enter in our body through air that we breathe, the water we drink or the food we eat. इन रास्तों से वो अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. And the disease causing microorganisms can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an insect or other animal. Then pathogens such as bacteria, viruses, protozoa, fungi, they enter our body and then they cause diseases. Now what do you mean by communicable diseases? Suppose a person who has disease causing microorganism, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स है और उसको डिजीज हुआ है, that person is known as infected person. Okay, so those microbial diseases which can spread from an infected person to the healthy person, from infected person to the healthy person through various modes of transmission are called communicable diseases. अब ये various modes of transmission क्या है? तो modes of transmission का मतलब है कि ये कौन से रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. ओके, तो अभी हमने ऊपर बात की कि जैसे हवा जो हम इनहेल करते हैं, देन जो फूड वाटर हम खाते हैं, जिस जिस चीज़ के कांटेक्ट में हम आते हैं, कभी हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ये डिसीजेस हमें ट्रांसफ़र होते हैं या फिर ट्रांसमिट होते हैं. ओके, सो कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से डिसीजेस हैं? जिनमें एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक वो डिसीज़ ट्रांसमिट होता है अलग अलग रास्तों से, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. ऐसे जो डिसीजेस है, दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस. नाउ these communicable diseases, they are caused by various pathogens. अलग अलग पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, देन अलगे. तो ये अलग अलग डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है. नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी पहले बात की थी, तो वापस एक बार मैं बताती हूँ. कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम जिसको हम बोलते हैं, वो है. देन ट्यूबरकुलोसिस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसीज है. देन पोलियो, जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, दीज आर कम्युनिकेबल डिसीज. मीन्स दे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स. ओके, अब ये होता कैसे है, इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. जैसे कि कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हम सर्दी जुकाम जनरली बोलते हैं. तो ये जब स्प्रेड होता है, तो वो स्प्रेड होता है बाय ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको इनहेल करने से, इनको ब्रीथ करने से वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब वो होता कैसे है? सी, द डिसीज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ वायरस, है ना, वायरस से होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्टेड विद द कॉमन कोल्ड वायरस। सपोज दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, दैट मीन्स ही इज हैविंग वायरस इन हिज बॉडी। सो व्हेन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब वो छींकता है, तब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके माउथ से बाहर निकलते हैं, और ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर द मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ कॉमन कोल्ड वायरसेस। तो इस तरह से उन ड्रॉपलेट्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, और वो एयर में सारे स्प्रेड हो जाते हैं। नाउ ऐसी एयर जिसमें ये सारे वायरसेस है, व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड मतलब जिसमें ये वायरसेस है, कंटेनिंग कॉमन कोल्ड वायरस, द वायरस एंटर्स हिज बॉडी, इसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में, है ना, तब वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। नाउ ही ऑल्सो गेट्स द कॉमन कोल्ड डिसीज, और उसको फिर जो है जुकाम होगा, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। ओके, तो इस तरह से ये कॉमन कोल्ड जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैरी करके, यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है। सी हियर इन द पिक्चर हाउ दिस common cold is spread through different ways in the air, like coughing, sneezing, then simply breathing and talking with other person. So these are the different ways how these viruses, bacteria, they spread through the air and they cause different types of diseases, and these diseases are known as airborne diseases. Then what are non-communicable diseases? Non-communicable diseases ऐसे diseases हैं जो sick person से healthy person तक नहीं फैलते हैं. These diseases which do not spread from sick person to the healthy person are called non-communicable diseases. वो sick person से healthy person तक नहीं spread होते हैं, है ना, and that's why they are known as non-communicable diseases. Okay, these diseases can be caused due to malfunctioning of an organ. सपोज कोई ऑर्गन अपनी बॉडी का खराब हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें डिसीज हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन होता है, या फिर किडनी फेल्योर होता है ना, ग्लूकोज का जो लेवल होता है अपने ब्लड में वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है। देन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको जो जेनेटिकली फॉरवर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। देन हार्मोनल कुछ इम्बैलेंसेस के डिसीजेज होते हैं जिसमें अपनी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं उनका जब इम्बैलेंस होता है तब ये डिसीज होते हैं, जैसे कि थायराइड है। तो ये सारे जो कॉजेज हैं दे आर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। ओके, सम एग्जांपल्स आर एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी वीक हो जाती है, पेल हो जाती है। देन डायबिटीज़ आपको पता है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स का क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन होना या फिर उसको उसका थिक होना। देन किडनी स्टोन्स, ऐसे बहुत सारी डिसीजेस है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, मतलब वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करती है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. Now let's see how we can prevent the communicable diseases. There are some methods for preventing the occurrence and spreading of communicable diseases. Let's see. So first is, a person suffering from common cold should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing, so that microorganisms do not get into the air. And we should also keep a safe distance from a person having common cold. तो जिसको भी common cold हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, उसको छींकते वक्त अपने मुंह पे और नाक पे हैंकरचीफ यानी कि एक रुमाल रखना है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में नहीं आएंगे। और जितना हो सके ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के हम रह सकते हैं अगर हमें इसका प्रिवेंशन करना है कॉमन कोल्ड का। ओके, देन नेक्स्ट इज, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। फ्लाइज जो होती हैं, हाउस फ्लाइज जिसको बोलते हैं, दे कैरी डिफरेंट जर्म्स that are attached to their body parts, like legs and wings and body part, mouth parts. Okay, so they are the carriers of different types of germs. So we should also drink clean and safe water. Clean and safe water हमें पीना है, फूड को कवर करके रखना है ताकि उसके ऊपर फ्लाइज जो है वो नहीं आए। देन वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो बाइट्स से हमें बचना है, इसके लिए हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर वायर मेश लगा सकते हैं डोर्स पे और विंडोज़ पे,
या फिर जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं जैसे कि ओडोमॉस है, या फिर जो कॉइल आता है ना, अगरबत्ती, कॉइल वाली अगरबत्ती आती है, उसको हम जला सकते हैं। तो इस तरह से हम इन डिसीजेज से बच सकते हैं, इनको फ्लाइज और मॉस्किटोज को दूर रख के। Then we should make sure that only disposable syringes and needles are used for giving injections. Injections देने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो यूज़ हो जाता है सिरिंज और नीडल, उसको हम वापस यूज़ नहीं कर सकते. इट कैन ट्रांसमिट डिसीजेस. Then we should avoid physical contact with any infected person and not use his towel, clothes or bed. The towel, clothes and utensils used by an infected person should be washed and cleaned separately with soap and water. ओके, तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी सारी चीज़ें अलग रखनी है, उसके कपड़े, उसका तौलिया, उसका बेड, खाने की चीज़ें, यूटेंसिल जो यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें अलग रखनी है, उसको आइसोलेशन में रखना है. जैसे आजकल हम कोरोना के पेशेंट को रखते हैं आइसोलेशन में, है ना, क्वारंटाइन करते हैं, उसी तरह से हम ऐसे डिसीजेस में जो है इस तरह से उन लोगों को आइसोलेट करके उनसे जो बीमारी फैलाने से बच सकते हैं. सम डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम. वैक्सीनेशन हम बहुत सारी जम्प से बचने के लिए करते हैं, जैसे कि पोलियो है, देन हेपेटाइटिस है, कोरोना वायरस है, टाइफाइड है. ये बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जिनकी वैक्सीन लगा करके हम पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ का प्रिवेंशन कैसे करना है उसकी मेथड्स थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन. लेट्स सी. फर्स्ट, थ्रू एयर. कॉमन कोल्ड है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, उसके जो जर्म्स होते हैं दे आर रिलीज इन द एयर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है या फिर स्नीजिंग करता है या फिर स्पिटिंग करता है, तो वो एयर में कंटेमिनेट हो जाते हैं, मीन्स एयर को वो कंटेमिनेट कर देते हैं जर्म्स. ओके, तो वो जर्म्स जब एक हेल्दी पर्सन उसको ब्रीथ करता है एयर के साथ, इन्फेक्टेड एयर के साथ, तो वो जो पर्सन है, हेल्दी पर्सन, ही ऑल्सो गेट्स इन्फेक्टेड, ही और शी जो भी है वो इन्फेक्ट हो जाता है. तो कॉमन कोल्ड के अलावा जो दूसरे डिजीजेज हैं वो है जैसे कि मम्स है, मीजल्स है, फ्लू है. ये डिसीजेज भी एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. द नेक्स्ट इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो कंटेमिनेट का मतलब होता है फूड और वाटर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं. वो चीज़ें कौन सी है? वो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब फूड और वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें डिसीजेस जो है अलग अलग, वो हम उससे सफ़र करते हैं डिसीज से. तो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो जब हम पीते हैं, है ना, डर्टी वाटर, तो हमें बीमारी होती है, जैसे कि वॉमिटिंग है, फीवर है, लूज मोशंस है ना, तो ये हमें होता है. सो व्हेन फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय पैथोजेंस, जैसे मैंने बोला अभी आपको जर्म्स, तो ये जो जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, तो ये जर्म्स या पैथोजेंस जो है हम कंज्यूम कर लेते हैं विथ फूड एंड वाटर, एंड देन वी गेट एक्सपोज टू द इन्फेक्शंस, और हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा है, टाइफाइड है, देन बोटुलिज्म है, डायरिया है, लेप्टोस्पायरोसिस है, टाइफाइड फीवर है, जियार्डिया है, और ये सारे जो डिसीजेज है, पोलियो है, जॉन्डिस है, दिस ऑल द डिसीजेज आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. हियर यू कैन सी दीज आर द फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, इनसे हमें फूड मिलता है ना. देन मीट, और मीट के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, देन डेयरी प्रोडक्ट्स है. तो ये सारी चीज़ें हम डेली में कंज्यूम करते हैं. वी ईट ऑल दिस थिंग्स, वी कंज्यूम ऑल दिस थिंग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी eaten properly, means before using them they should be properly cooked and they should be properly washed. Here also you can see one how water in the tank or water in the well gets contaminated. Here you can see, here one toilet is there. So here this contaminated water जो कि सॉइल के अंदर है, वो उसका जो मॉइस्चर होता है उसके थ्रू ये जो वाटर है वो इस वेल है या फिर जो टैंक है उसमें जो पानी स्टोर करके रखा है यहाँ पर, इसको वो कंटेमिनेट करता है. तो यहाँ से यहाँ तक जो वाटर आता है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के थ्रू कुछ जाते हैं, कुछ मॉइस्चर के थ्रू यानी कि वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर इस पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं, और वही पानी फिर हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए.
तो इन दिस वे ऑल्सो दिस वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। देन और ये पिक्चर भी आपने बहुत बार कहीं देखा होगा, गाँव में स्पेशली जो रिवर्स होती है या पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं छोटे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि लोग वहीं पे अपने क्लोथ वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, देन वहीं पे नहाते हैं, एनिमल्स भी वहीं पे अपना वेस्ट जो है वो डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रिवर में आ जाती हैं। देन अगर ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं देन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ओके, देन नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स किसी के डायरेक्ट टच में आना, है ना। सो इफ अ हेल्दी पर्सन शेयर्स आइटम्स लाइक टॉवेल्स है, हैंकरचीव्स है, या फिर किसी को शेक हैंड आप करते हो इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उसके हैंड्स पे हो तो वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो या तो आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है कि आपने उनसे शेक हैंड किया या फिर उनको हग किया, है ना। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है कि आपने उनकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मनी हम यूज़ करते हैं बहुत बार, है ना। देन बहुत सारे जो कार्ड्स हम यूज़ करते हैं, इस तरह के जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं, देन मोबाइल्स हम यूज़ करते हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी चीज़ें होती है घर के अंदर घर के बाहर जो हम इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ जाते हैं उन चीज़ों की वजह से। तो ये होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। जैसे कि क्लोथ्स यूज़ करना है या फिर उनके यूटेंसिल्स है, बर्तन यूज़ करना है, तो दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इनसे जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं वो है कॉमन कोल्ड तो है ही, देन ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म जो कि एक स्किन डिसीज है, ये भी टच से यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। देन नेक्स्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज है वो है थ्रू इंसेक्ट्स। नाउ इंसेक्ट्स जो हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आंट्स है, मॉस्किटोज है, देन कॉकरोचेज है, फ्लाइज है जिसको हम हाउस फ्लाइज कहते हैं, है ना। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स है कॉमन है एंड वी कैन सी देम हियर एंड देयर नियर अबाउट आवर होम, एवरी प्लेस, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। एंड दिस इंसेक्ट स्प्रेड डिसीजेस आइदर थ्रू देयर बाइट, या तो उनके बाइट से वो डिसीजेस फैलते हैं जैसे कि मॉस्किटो है, या फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं पैथोजेंस को टू फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स या जिसको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनसे ये स्प्रेड करते हैं। तो सच इंसेक्ट्स आर कॉल्ड द कैरियर्स ऑफ जर्म्स। ये सारे डिसीजेस ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं जर्म्स के कैरियर्स है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉस्किटो की। तो मॉस्किटो जो है आपको पता है कि मलेरिया स्प्रेड करता है ना। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफेलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफेलिस जो होता है उसकी वजह से मलेरिया होता है। देन एडिस मॉस्किटो जो है इट कॉजेज डेंगू। ओके, तो इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन कैसे पता चलेगा कि ये एडिस मॉस्किटो है, ये एनोफेलिस मॉस्किटो है। तो जो एडिस मॉस्किटोज है दे आर इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई देम। सो दे आर ब्लैक, ब्लैक कलर के होते हैं और उनके ऊपर वाइट पैचेस होते हैं उनके लेग्स पे और पूरी बॉडी पे, दे आर हैविंग वाइट पैचेस। देन क्यूलेक्स और एनोफेलिस जो मॉस्किटो हैं दे आर येलोइश कलर के होते हैं। बट यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय ऑब्जर्विंग देयर रेस्टिंग पोजीशन। जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब वो उड़ते नहीं होते, तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो 45 डिग्री एंगल में बैठता है, और जो क्यूलेक्स है इट स्टेज पैरेलल टू द सरफेस, है ना। तो लेट्स सी देयर पिक्चर्स। दिस इज एनोफिलिस मॉस्किटो, दिस इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, this is Aedes mosquito. You can see these white patches on its legs and wings and body. Now how we can prevent these diseases, जैसे हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उनसे फैलने वाले जो डिसीजेज होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो लेट अस सी, वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हियर एंड देयर। हाउस होल्ड भी गार्बेज है, वी शुड थ्रो इट अवे। The garbage should be put in the garbage bins which should be kept covered. garbage bins के अंदर जो भी हम चीज़ें डालते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो चाहे कुछ यूज़ की हुई चीज़ें हो, they should be covered. This will prevent the house flies from breeding because they will not able to lay their eggs on the garbage. जो house flies होती हैं वो अपने eggs को ले करती हैं garbage के अंदर, क्योंकि वहाँ पर उनका जो है ब्रीडिंग अच्छे से होता है ना, क्योंकि वहाँ पर फूड भी अवेलेबल होता है, मॉइस्चर भी होता है। तो
तो ब्रीडिंग ग्राउंड इसको कहा जाता है ना, गार्बेज को, फॉर हाउस फ्लाइज। तो अगर ऐसे ब्रीडिंग ग्राउंड्स अपने आसपास हैं, घर के आसपास, तो डेफिनेटली हाउस फ्लाइज विल इंक्रीज इन नंबर। तो हमें ऐसे गार्बेज को वहाँ से हटा देना है। देन द फूड शुड बी ऑलवेज kept covered so that flies cannot sit on it. We should always avoid eating uncovered food items from the roadside stalls. अनकवर्ड जो फूड होता है उसको नहीं खाना है, जो हम मार्केट में जा करके खाते हैं। देन द फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे एंड बेट्स। तो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए अगर हाउस फ्लाइज ज़्यादा हो तो। देन सम ऑफ द डिसीजेज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ जो डिसीजेस हैं जो हाउस फ्लाइज से स्प्रेड होती हैं उनको वैक्सीनेशन से हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द सम थिंग्स, some points you must remember about the house flies. Here you can see these are the house flies and this is the breeding ground जिसको हम कहते हैं। जो सड़ा गला फूड होता है या फिर गार्बेज होता है, डस्टबिन होता है, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो होते हैं फ्लाइज। Here you can see another picture of house fly. So in this way this house fly sits on the food item and transmits the germs on the food. Now let us see how malaria transmission occurs, or how malaria is transmitted from a sick person to the healthy person. We know that malaria is spread by the carriers of germs, and these carriers are the female Anopheles mosquitoes. Okay, so when a female Anopheles mosquito bites a patient who is suffering from malaria, the malarial parasite enters in its body. इसके बॉडी के अंदर वो मलेरियल पैरासिट आ गया। ओके, जब इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया। सो व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, व्हाट इट डज, इट ट्रांसफर्स द डिजीज कॉजिंग पैरासाइट इनटू द हेल्दी पर्सन्स बॉडी। इसकी बॉडी में वो मलेरियल पैरासाइट ट्रांसमिट हो गए, कॉजिंग मलेरिया। अब इसको मलेरिया हो गया। तो मलेरिया होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर सेल्स जो होते हैं, लीवर के सेल्स हैं या फिर जो रेड ब्लड सेल्स है, इनको ये मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्ट करता है ना। और ये जो पैरासाइट है अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि उसका जो रिप्रोडक्शन है वो इस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर, या फिर जो मॉस्किटोज़ है ना, मॉस्किटोज़ की बॉडी के अंदर वो बहुत सारा अपना लाइफ का जो लाइफ साइकिल का पार्ट है वो कंप्लीट करता है। तो इसलिए इन इंसेक्ट्स को कहा जाता है वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ जो इन्फेक्टेड ब्लड है ये इस हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर, तो जब कोई मॉस्किटो ऐसे पर्सन को काटता है, बाइट करता है ना, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो पैरासाइट्स इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। और फिर जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो सेकंड पर्सन जो होता है वापस इन्फेक्ट हो जाता है, हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसी तरह से एक और डिसीज़ है डेंगू, है ना। तो डेंगू जो कि एक वायरल है, वायरल डिसीज है, यानी कि वायरस से कॉज होता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो। हमने अभी उसकी पिक्चर देखी थी। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर द डेंगू फीवर और डेंगू वायरस। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय मॉस्किटोज। तो इन डिसीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं स्प्रेड होने से, है। तो सबसे पहले हमें उन मॉस्किटोज का कुछ करना होगा। तो क्या करना है, लेट अस सी। सो वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू दैट आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज इन द फॉलोइंग वेज। सो फर्स्ट वन इज ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। हमें पता है कि जो मॉस्किटोज हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं पानी के अंदर, जो कि ठहरा हुआ पानी होता है, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर। तो ऐसे जो पूल्स होते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अपने घर के आसपास, उनको हमें ड्रेन कर देना चाहिए। उनको हमें या तो ड्राई कर दो मिट्टी डाल के, या फिर वहाँ से पानी जो है उसको कहीं और उसको वे बना दो ताकि वहाँ से कलेक्ट नहीं हो और बह जाए। तो ऐसा जो स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर होता है उसमें जो है मॉस्किटोज वो ब्रीड करते हैं, है ना। सो वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स। ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिसके अंदर बहुत दिन तक पानी कलेक्ट हो सकता है, जैसे कि कूलर्स हम रखते हैं, टायर्स होते हैं यूज़ किए हुए, देन फ्लावर पॉट्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम या तो अपने आंगन में रख देते हैं पीछे की तरफ, कहीं छत के ऊपर हम रख देते हैं, टूटे हुए बर्तन होते हैं या फिर मिट्टी के मटके होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, चाहे वो बारिश का पानी क्यों ना हो। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए जिसमें वाटर कलेक्ट हो।
By keeping our surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding, and when there are no mosquitoes, there will be no malaria or dengue. तो जब ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होगा मॉस्किटोज़ के लिए तो नेचुरली वो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा और मलेरिया और डेंगू जो है उसका स्प्रेड नहीं होगा क्योंकि मॉस्किटोज़ नहीं होंगे. द विंडोज एंड डोर्स ऑफ हाउस शुड बी कवर्ड विथ फाइन आयरन वायर्स मेश. वायर मेश जिसको हम बोलते हैं, नेट जो होता है वायर आयरन का बना हुआ, जिसकी वजह से मॉस्किटोज जो है वो अपने घर के अंदर नहीं आ सकते. देन इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड. अगर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा है तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो ताकि वो मॉस्किटोज को किल करें. देन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. इन डर्टी वाटर ड्रेन्स जो होते हैं उसके ऊपर आप ऑयल स्प्रे कर दो तो वहाँ पर मॉस्किटोज जो है वो अपने आप ही मर जाते हैं और वो ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि उनको जो है उनके जो एग्स वगैरह है या फिर जो लार्वी होते हैं उनके, है ना, लार्वी जो होते हैं मॉस्किटोज के, वो ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ऑयल को स्प्रे करने के बाद. देन मॉस्किटो रिपेलेंट्स हमें यूज़ करना चाहिए जो क्रीम के फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है. और हमारे जो हैंड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, उस पर अगर हम ये लगाएंगे तो वो हमें नहीं काटेंगे बिकॉज दे आर मॉस्किटो रिपेलेंट. वो मॉस्किटोज को दूर रखते हैं, रिपेल करते हैं. सो बॉडी अपनी जो होती है उसके पार्ट्स को ये क्रीम अगर आप लगाकर सो जाते हो रात को तो मॉस्किटोज आपको नहीं काटते. मॉस्किटो नेट्स आप यूज़ कर सकते हो अपने बेड्स के ऊपर जब आपको सोना होता है, जिससे हम मॉस्किटोज़ की बाइट से बच सकते हैं. तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को दूर रखने के लिए. इनके अलावा जो कुछ और इंसेक्ट्स है जैसे कि आंट्स होती हैं, देन जो कॉकरोचेज होते हैं, कॉकरोचेज जो है वो भी एक तरह के कैरियर्स है जर्म्स के बिकॉज दे सिट ऑन द डर्ट एंड देन पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. व्हेन दे अगेन सिट ऑन द फूड दे ट्रांसफर दिस जर्म्स टू द फूड. और इस तरह से जो हेल्दी पर्सन होता है वो ऐसे फूड खाने से जो है बीमार हो जाता है. देन नेक्स्ट इज थ्रू कट्स एंड वुंड्स. तो कट्स और वुंड से कैसे स्प्रेड होते हैं डिसीजेस, लेट अस सी. तो सर्टन पैथोजेंस लाइक टिटेनस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू कट्स एंड वुंड्स. अगर हमारी बॉडी पे कहीं कट्स लगे हुए हैं या फिर कहीं पे कुछ जख्म हो रही है तो वहाँ से ये टिटेनस के जो पैथोजेंस हैं वो एंटर कर सकते हैं एंड देन वी कैन सफ़र फ्रॉम टिटेनस. और ऐसे वुंड जिसमें लगा या फिर ऐसी जख्म हो रही है तो हमें जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस जख्म के थ्रू यानी कि वुंड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. देन देयर आर सम प्लांट डिसीजेस that are caused by different microorganisms. Let us see. Just like human beings, these microorganisms also cause diseases in other animals and plants. So here you can see the picture, pea rust and wheat rust. So these plant diseases are called rust of wheat and it is caused by fungi. ये जो है एक तरह का जो फंगस होता है उनसे ये डिसीज होता है. Thus the causative microorganism of rust of wheat disease is fungus. फंगस से कॉज होता है. The rust of wheat disease is transmitted through air and seeds. Air and seeds से ट्रांसमिट होता है and this means that the mode of transmission of rust of wheat diseases are air and seeds. Then the next disease जो है it is known as citrus canker. आप देख सकते हो कि जो फ्रूट है वो बिल्कुल ऊपर से खराब हो चुका है. So the causative microorganism of this disease is bacteria. ये बैक्टीरिया की वजह से होता है citrus canker. Okay. And it is transmitted through air. ये air के through transmit होता है ये disease. This means that the mode of transmission of citrus canker disease of plant is air. And it is found in citrus trees such as lemons, limes, oranges, etc. The next is yellow vein mosaic. This is yellow vein mosaic of भिंडी जिसको ओकरा भी बोलते हैं. तो भिंडी के जो प्लांट होते हैं उस पर ये डिसीज आता है एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. किससे होता है ये? वायरस से. सो तो इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस एंड दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट. ये जो डिसीज है उसको ट्रांसमिट करने का काम इंसेक्ट्स करते हैं. ओके. सो डिसीजेस ऑफ प्लांट्स दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इन डिसीजेस की वजह से जो प्रोडक्शन होता है फील्ड में, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है और जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स की वो भी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है. ये जो प्लांट डिसीजेस हैं दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स जिसकी वजह से ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कील हो जाते हैं, वो मर जाते हैं.
Here again you can see some type of diseases, wheat में rice, potato, sugar cane, oranges, apple. इन फ्रूट्स पे या इन प्लांट्स पे आप ये डिसीज देख सकते हो। आपने कभी शुगर केन अगर इन्फेक्टेड देखा होगा तो अंदर से वो पूरा रेड रेड हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ डिजीज। देन देर आर सम एनिमल डिसीजेस जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन अदर एनिमल्स ऑल्सो। जो कैटल होते हैं जैसे काऊ, बफेलो या फिर दूसरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, शीप्स, गोट्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स, तो ये एनिमल्स जो है वो भी इन बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। तो some examples of these diseases we will see now, which are caused by different microbes. So here you can see this disease is known as foot and mouth disease of animals like cattle के अंदर ही होता है। It is caused by virus. इस डिजीज का नाम क्या है? फूट एंड माउथ। तो जैसे कि नाम में ही हम पहचान सकते हैं कि फूट और माउथ जो है वो इन्फेक्ट होता है इसमें एनिमल का। इससे जो है ब्लिस्टर्स आ जाते हैं फुट में और माउथ के अंदर। हियर यू कैन सी इस तरह के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स है वो कुछ खा नहीं पाते हैं। सो दिस इज फुट एंड माउथ डिजीज। देन द एंथ्रैक्स, इट इज अ डेंजरस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एंथ्रैक्स डिसीज उससे होता है। ओके और ये जो बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रासिस, it causes this anthrax disease and it was discovered by रॉबर्ट कोच इन 1876। 1876 में रॉबर्ट कोच ने इसको इन्वेंट किया था, इस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियम को। बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। देन नेक्स्ट जो डिजीज है वो होता है पोल्ट्री एनिमल्स में, जैसे कि बर्ड्स है, डक्स है, और इसका नाम है एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस जो डिजीज होता है इट कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फंगस नेम्ड एस्परजिल। देन नेक्स्ट जो डिसीज है वो देखा जाता है पोल्ट्री बर्ड्स में, जैसे कि हेन्स है और डक्स है। तो एस्परजिलोसिस जो डिजीज होता है इन बर्ड्स को वो होता है इस फंगस से जिसका नाम है एस्परजिलस। हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे तब मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल आपको। तो ये एस्परजिलस जो फंगस है इसके जो स्पोर्स होते हैं, है ना, जब ये बर्स्ट होते हैं मैच्योर होके तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में स्प्रेड होते हैं और फिर जब ये बर्ड्स उनको इनहेल करते हैं तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो सीधे जा करके उनके लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, वो लंग्स को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से एक और डिसीज़ है और डिसीज़ का नाम है एस्परजिलोसिस। ओके सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। We know that if the food is not covered properly, stored properly or preserved properly, then it gets spoiled by the action of microorganisms. अभी हमने पढ़ा है ना। Then this microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substances, जो कि पॉइजनस होते हैं। टॉक्सिक्स मतलब पॉइजनस होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं ये उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं और फिर उनमें से फॉल स्मेल आती है या फिर बैड टेस्ट उनका हो जाता है, फूड का कलर भी चेंज हो जाता है ना। और ऐसा फूड जब हम खाते हैं तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। सो दिस इज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर फूड पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होती है जब हम ऐसा फूड खाते हैं। Here you can see the picture. देन फूड पॉइजनिंग हुई है ये कैसे पता चलेगा? तो देयर आर सम सिम्टम्स। क्या क्या होता है फूड पॉइजनिंग होने के बाद? वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, मसल पेन, फीवर, डिहाइड्रेशन, ये सारे सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के और वो होता है इन्फेक्टेड फूड खाने से। तो जो सील पैक फूड होते हैं कभी कभी वो एक्सपायरी डेट के अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर वो कहीं से सील उसका लीक है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन दैट फूड एंड इफ़ यू कंज्यूम दिस फूड देन यू विल गेट द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। फूड पॉइजनिंग इतना सीरियस हो सकता है कि उससे डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की। तो इस तरह से हमें स्टमक पेन होता है ऐसा फूड खाने से जिसमें जर्म्स हो। देन ये जो जर्म्स होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग होती है जिनसे, ये जनरली या तो फूड पे होते हैं या फिर जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जो क्रॉकरी हम यूज़ करते हैं या फिर जो ग्लासेस हम यूज़ करते हैं, फोर्क स्पून यूज़ करते हैं, उनके सरफेस पे भी ये अटैच होते हैं। इसलिए उनको प्रॉपर वॉश करने चाहिए बिफोर यूज़।
देन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, अच्छे से उनको धो के वॉश करना है कुक करके. सो हियर यू कैन सी वॉमिटिंग है वो होता है फूड पॉइजनिंग का सिम्टम है, जो कि स्टेल फूड या फिर जो स्पॉइल फूड है उसको खाने से होता है. तो एक फंगस जिसको हम कहते हैं एस्परजिलस, इससे भी फूड स्पॉइल हो जाता है. उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं जो फूड को पॉइजनिंग करते हैं वो है साल्मोनेला बैक्टीरिया. देन एक और बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिससे बोटुलिज्म होता है, डिसीज. देन अनक्लीन जो फूड कंटेनर्स होते हैं उनसे ये डिसीज़ होता है, क्योंकि अनक्लीन होगा, साफ नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं. देन फ्लाइज, कॉकरोचेज, इंसेक्ट, रैट्स और जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है. तो इन फूड पॉइजनिंग से हम कैसे बचें, कैसे उनको फाइट बैक करें, या फिर कैसे हम अपने फूड को सेफ रखें बैक्टीरिया से. सो वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड द सर्फेसेस क्लीन रखना है सरफेस को, जहाँ पे भी हम फूड रखते हैं या फिर यूटेंसिल्स रखते हैं. जहाँ पर भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम फूड स्टोर करके रखते हैं उस जगह को प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए. देन डोंट क्रॉस कंटेमिनेट, जैसे कि जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो जो भी है, उसको आपको एक साथ नहीं रखना है. मीन्स उनको अलग रखो ताकि जो फ्रेश या दूसरा जो अच्छा फूड है वो ख़राब नहीं हो. देन कुक टू प्रॉपर टेम्परेचर्स, फूड को प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं. एंड चील रेफ्रिजरेटर प्रॉपरली, चील करना है उनको, रेफ्रिजरेट करना है प्रॉपरली फूड को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो. तो और कुछ ऐसी मेथड्स होती है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय तक उसको अच्छा रख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रख सकते हैं. क्योंकि फूड जो है वो बहुत प्रेशियस है एंड इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड, बिकम यूजलेस एंड कॉज द फूड पॉइजनिंग. ओके, तो फूड जो है हमें अच्छी तरह से स्टोर करके रखना है. उसके कुछ मेथड्स होते हैं प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, and we will see different methods of preservation of food. So students, here we have finished this topic. We will meet again in our next video. Till then, wash your hands regularly, use sanitizer, stay home and stay safe. Take care of yourself and your family. We are going to meet soon in our next video with preservation of food. Till then, take care. Bye bye.